So we are going to discuss about introduction to information technology. So you all are very well aware about the information technology. That is, with the help of some technological device, some machine, we manipulate the information or data that is with you. Because that is information technology. That means by using some sophisticated tools, some software programs, some devices like your computer systems, smartphones, CDAs, etc. By using such kind of devices, you can manage the information properly in an appropriate way. जिस फॉर्मेट में जिस मैनर से यू वांट द इंफॉर्मेशन, तो आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So if we are talking about information technology, so first of all we have to discuss about the technology. So the basic part of the technology is your computer system. The computer system that you will be using to manipulate the information for your various kind of purposes. So you all know, in the current scenario, information is the main center point of organization. If you are talking about any particular individual person or any organization or any other uh, authority, so the main focus area is information. That how you deal with the information, how you hold the information, how you manipulate the information for your purpose. Earlier, the information was kept into libraries, books, newspapers, etc. That was the older fashion. But nowadays, you don't need such kind of things. You don't need to go to library. You don't need to go to look at the books. You don't need to read the newspaper. Whatever information you want, whether it is related to your general information, whether it is related to your surrounding information that you call is news, or any other content related to any particular topic or area. तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो दैट इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस थ्रू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी बुक्स, वो सारे न्यूज़पेपर्स आप एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. यू डोंट नीड टू गो फॉर द फिजिकल कॉपीज ऑफ द बुक्स और न्यूज़पेपर्स. अदर बेनिफिट इज दैट कि आपको कोई बुक चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में जाना ही जाना पड़ेगा. लाइब्रेरी के अंदर ही आपको बुक मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा. लेकिन if you are using the computer systems, so you don't need to go to a particular situated place. आपको किसी एक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है. You are having a computer system with internet connection, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो किसी भी प्लेस से. At any particular moment you are traveling to some particular destination, or you are sitting at a large geographical distance, you are wandering in the hills, so anywhere you can access the information provided you are having a computer system with internet connectivity. तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो. दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो क्योंकि इतना ज्यादा बेनिफिट है, आपको किसी किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए. तो इट इज द मैंडेटरी थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, and in the near future everything will be computer based. If you are having the computer knowledge, then you can move forward, else otherwise there you will be stuck in your life without the knowledge of computers, because everything is going to be computer based. So
From here we are starting with the introduction of computer system with your uh, content of syllabus, that is IIT Introduction to Information Technology. The first thing that we are going to discuss about the computer. So you all are very well aware about the computer system, that it is an electronic device which is used to process the data. एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। किस फॉर्म में? इसका जो सिनेरियो ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल, आईपीओ मींस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी कि you will be providing some kind of input to the system, and then system will process that input, whatever data you have fed as input to the system, तो उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा and will generate the desired output after processing. For example, if you feed some data as 2 plus 2, आपको सम करना है एक डेटा का 2 plus 2, तो आपने डेटा को इनपुट कर दिया 2 plus 2, तो डेटा क्या कर, सिस्टम क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। क्या कि उसके अंदर आपने एक एडिशन ऑपरेशन स्पेसिफाई किया हुआ इनपुट के अंदर, वो 2 और 2 के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट क्या करेगा, कंप्यूट कर देगा। ठीक है जी, तो 2 plus 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 रिजल्ट को कंप्यूट करके वो क्या कर देगा, आपके आउटपुट के ऊपर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, तो ये पूरी क्या होती है, एक आईपीओ साइकिल होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, जिसके अंदर इनपुट होती है, फिर डाटा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स एंड स्टोर्स द डेटा इनपुट। सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसको स्टोर कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेसेस द डाटा इनपुट। उसके बाद जो भी ऑपरेशन उसके अंदर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, उस ऑपरेशंस को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस डेटा इनपुट के ऊपर। और उसके बाद क्या करते हैं, फाइनली जनरेट्स द आउटपुट इन ए रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो जिस फॉर्म में आपके आउटपुट जनरेट होनी थी, वो फॉर्मेट के अंदर आउटपुट जनरेट करके आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये सब, ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। Similar example to computer IPO cycle is whether you are making the flour from your wheat or rice or anything else, that you are providing the as an input raw rice material you are providing. Then there is a flour making machine which processes this rice and convert it into the rice flour, and output is the desired format, that is your flour obtained from the rice, that is rice flour. So this is a kind of IPO cycle. For example, other example you can take about the ATM machine. एटीएम मशीन के अंदर आप क्या करते हो, आप कार्ड इनपुट करते हो, देन आप अपना पिन डालते हो, और उसके अंदर आप अपने अमाउंट डालते हो, ये सब आप इनपुट कर रहे हो उसके अंदर। फिर क्या करता है, फिर एटीएम मशीन उस डेटा को प्रोसेस करती है अपने बैंक के सर्वर के साथ। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पिन को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई होते ही पिन क्या करेगी, जो भी आपने इनपुट दी अमाउंट, उस अमाउंट को क्या कर देगी, वो काउंट करके डिस्पैच कर देगी कहाँ पे, आपके आउटपुट जो उसका बॉक्स होता है एटीएम मशीन का, जहाँ से आप मनी को पिकअप करते हो एटीएम मशीन से, वहां पे क्या कर देगा, उसको आउटपुट कर देता है। आप यू कलेक्ट द मनी एंड आईपीओ साइकिल इज कंप्लीट फॉर एटीएम मशीन। So there are various kind of examples related to IPO cycle of computer system. In the same pattern, computer works. Then we are talking about the data. Data is the representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner, which should be suitable for communication, interpretation, and processing by human or electronic machine. ठीक है जी, तो कोई भी फैक्ट है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, एनी काइंड ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ alphabetical letters from A to Z in capitals and A to Z in small letters. ठीक है जी, all the digits from 0 to 9 or any combination of these, and special characters, whatever the punctuation marks you use, whether
plus, minus, divide, multiply, equal to, and not equal to, or sign of exclamation, full stop, comma, colon, semicolon, whatever the special characters are there, all these comprise the form of data. यानी कि इन सबको मिला के क्या बनता है, डेटा बनता है जी। ठीक है जी, आपके जितने भी एबीसीडी हैं, आपके जितने भी न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं 0 to 9, और जो भी आपके अदर सिंबल्स करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स आप यूज करते हो वो सब। ठीक है जी, ये सब क्या है, डेटा है। एक्चुअली डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ state. Raw state means the data doesn't have any particular meaning in itself. Data exist तो करता है in form of all these formats, alphabets or numerics or symbols, but it does not have any particular meaning. To make it a meaningful, we have to process this data, and when we are processing the data, then it will become in a different format that will call it as information. So this is a for example table of data जिसके अंदर वेरियस सिटीज है, आपके सीरियल नंबर्स हैं, उनके टेम्परेचर्स गिवन है। ठीक है, ये दिस होल इज द डेटा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे इस डेटा को। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। यानी कि जो आपके ये क्या है, सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आपके प्रोसेस के अंदर, वो किस पे परफॉर्म होते हैं, आपके इनपुट के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर, और वो इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देता है आउटपुट के अंदर। और जो डेटा को प्रोसेस करेंगे हम, उस डेटा की आउटपुट क्या आएगी, आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, so this is the output of your data after processing. So the information is the organized or classified data, यानी कि उस जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, जिसका क्या है, एक पर्टिकुलर मीनिंग है किसी भी पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है जी, तो इफ इट इज ए मीनिंगफुल डेटा देन इट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन। तो ये जो मीनिंगफुल डेटा है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, अब इस क्योंकि इंफॉर्मेशन हैज सम काइंड ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग के बेसिस के ऊपर वी कैन टेक डिसीजंस, वी कैन टेक पर्टिकुलर एक्शंस वट एवर रिक्वायर्ड। बट इफ वी आर हैविंग द रॉ डेटा दैट डजंट हैव एनी मीनिंगफुल मीनिंग, so without a particular meaning we can't perform any decisions, we can't take any actions. So we have to manipulate the data, we have to process the data into information to use it for a particular purpose. ठीक है जी, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। वही टेबल है ये आपकी। ठीक है जी, इस टेबल के अंदर क्या कर दिया हमने, इसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर दिया। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या बनेगी इसकी, सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, स्मॉलेस्ट वैल्यूज टू लार्जेस्ट वैल्यूज के अंदर इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है वो पहले स्मॉलेस्ट है, फिर सबसे लार्जेस्ट है। दूसरा क्या हो गया, अब इस टेबल के थ्रू हम लोवेस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि 20 है जी, हाईएस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं 40 है जी, एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सभी को कंबाइन करके। तो ये जो डिफरेंट जो प्रोसेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, हम हाईएस्ट टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोवेस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सॉर्टिंग करने लग रहे हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं, ये दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग्स। और उस प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। ठीक है जी, कि आपके पास सॉर्टेड डेटा आ गया, आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर आ गया, आपके पास लोवेस्ट टेम्परेचर आ गया। तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू नीड देम फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, तो आप उनको क्या कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। Then we are having some advantages of computer: high speed, accuracy, storage capability, diligence, versatility, reliability, automation, reduction in paperwork, reduction in cost. So we are talking about advantages. So first one is high speed.
That means it is capable of performing calculation of very large amount of data. That is if we talk about its speed, then we calculate the speed of computer in million instructions per second, MIPS, that is millions of instructions per second. एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है जी। जनरली अगर हम बात करें तो स्पीड की, इसको माइक्रो सेकंड में ले सकते हैं, नैनो सेकंड में भी ले सकते हैं, पिको सेकंड में भी ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो सेकंड यानी 10 रेज़ टू पावर -6, नैनो सेकंड 10 रेज़ टू -9, पिको सेकंड 10 रेज़ टू -12। Accuracy, it gives 100% accurate results. Whether you are performing 2 plus 2, so definitely it will give the 4. Neither it will give 3.9 nor it will give 4.1. That means gives accurate results. Storage capability means it can store the large amount of data in a very limited sized storage space. ऐसा नहीं है कि एक रूम की जितनी बड़ी स्टोरेज स्पेस है और उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करने लग रहा है तो उसका कोई मीनिंगफुल नहीं पर्पस नहीं है। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब ये, इट कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए वेरी लिमिटेड फिजिकल स्पेस। एक बहुत ही छोटी सी, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, आपकी छोटी सी स्टोरेज स्पेस होता है आपका। ठीक है जी, उस फिजिकल साइज उसका बहुत ही स्मॉल होता है और उसके अंदर इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। So that is the storage capability of computer system. Diligence, डिलीजेंस का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम है, जब भी आप कंटिन्यूसली बार बार एक ही काम इससे कितनी बार भी करवा लो रिपीटेडली, ये कभी भी बोर नहीं होता। ठीक है जी, दैट मींस इट इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। रिपीटेशन कर रहे हो आप, बार बार कोई एक काम को परफॉर्म कर रहे हो, तो ना तो ये थकेगा, ना ये बोर होगा, और ना ही कोई एरर जनरेट करेगा कि भाई एक काम को आप 10 बार कर रहे हो तो हर बार इट विल गिव द सेम रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार काम को एक बार कर रहे हो तो कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है, दोबारा कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट जनरेट कर रहा है। इट विल नॉट बी लाइक दैट इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, तो दैट इज डिलीजेंस। वर्सेटिलिटी मींस it is versatile in nature. That means it can perform different kind of problems, it can solve the different kind of problems, it can perform different kind of functions, operations। ठीक है जी, रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप इस कंप्यूटर सिस्टम से करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम है कि सिर्फ ये टेक्स्ट एडिटिंग ही कर सकता है, या फिर ये ऑडियो ही चला सकता है, या फिर ये वीडियो ही चला सकता है, या फिर ये एंटीवायरस ही रन हो सकता है। एनी काइंड ऑफ टास्क यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज वर्सेटिलिटी। रिलायबल, दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी। भरोसेमंद है जी, कि आप बार बार जो भी काम करवा रहे हो तो डेफिनेटली ये परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये थक के बैठ जाएगा कि बस अब तो बहुत हो गया, 2 घंटे बाद अब फिर करेंगे। ये कंटिन्यूसली इट कैन वर्क 24/7, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, दैट इज यू कैन से दैट इज इन द फेवर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि एक 80 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप कंप्यूटर सिस्टम को रख के और बोलो कि काम कर, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको टेम्परेचर प्रॉपरली चाहिए। ठीक है जी, प्रॉपरली मेंटेन्ड। ठीक है, उसको पावर चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है और आप बोलो कि काम करे, तो मैं दैट मीन्स जो फिजिकल जो बेसिक जो नेसेसिटीज है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, वो तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद ये इट कैन वर्क कंसिस्टेंटली थ्रू आउट डे एंड नाइट। ठीक है जी। फिर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप इसके अंदर क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करते हो। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर सिस्टम को, फिर ये अपने आप क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। आपको कोई पर्टिकुलरली अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है हर बार कि आप ये काम इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दिए तो ये अपने आप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ये क्या करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। दैट इज ऑटोमेशन। रिडक्शन इन पेपर वर्क, क्योंकि आज के दिन क्या है, सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आप कोई भी डेटा को आप कैरी करते हो तो फाइल्स में कैरी नहीं करते, आप पेन ड्राइव के अंदर कैरी करते हो, हार्ड डिस्क के अंदर कैरी करते हो, सीडी के अंदर कैरी करते हो। तो वो क्या हो गया, वो पेपर वर्क रिड्यूस हो गया। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी कहीं पे, तो आप ईमेल यूज करते हो, ईमेल के थ्रू कोई भी डेटा भेज दिया, आप व्हाट्सएप यूज करते हो। ठीक है, तो कोई मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम हैज रिड्यूस्ड द पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। अब आप सारा कुछ क्या कर रहे हो, काम इलेक्ट्रॉनिक डाटा के ऊपर काम कर रहे हो। रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है जी, अब ये सारे क्योंकि पेपर भी रिड्यूस हो रहा है आपका,
आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को भी सोल्व करने लग रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कॉस्ट के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस कॉस्ट इसके अंदर क्या हो रही है, यूज हो रही है। एक बार आपको कंप्यूटर सिस्टम परचेज करना पड़ेगा डेफिनेटली, वहां पे हाई कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसके बाद क्या करता रहेगा, ये कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा, कंटिन्यूअसली करता रहेगा। ठीक है जी। इसको ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आपकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी उसके यूसेज के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि काम करते रहो आप, करते रहो आप, ये चलता जाएगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, नो आईक्यू, इसके अंदर इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं है जी। ठीक है जी, इंटेलिजेंस नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आपने जो इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए वही इंस्ट्रक्शंस ये क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर क्या होगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा, अपने आप ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, कि खुद के डिसीजन नहीं ले सकता, इसके अंदर जो डिफाइन कर दिया वही काम करेगा ये। तो नो आईक्यू इन कंप्यूटर सिस्टम। दूसरी तो डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मींस कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, यूजर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। आपने यूजर के अंदर इंस्ट्रक्शन दे दिए यूजर ने, तो उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर क्या करेगा, ये काम करेगा। आपने बता दिया 2+2=4, तो वही 2+2 आपके कभी भी उसके अंदर इनपुट दोगे तो 4 ही रिजल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फीड किया हुआ उसके अंदर। अब 5 कर दोगे 2+2, तो ये 5 ही दिखाएगा। ठीक है, इसको नहीं पता कि वो सही है गलत है, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। दूसरा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको वही मैंने जो अभी बताया था कि इन्वायरमेंट शुड बी सुटेबल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। डस्ट फ्री होना चाहिए, पावर कंटिन्यूअस होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, उसके बाद ये काम कर सकता है। ये चीजें नहीं होंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो यानी कि आप बाउंड हो गए कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा, तो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज। नो फीलिंग। नो फीलिंग मीन्स कोई इमोशंस नहीं है इसके अंदर, कोई फीलिंग्स नहीं है कि भाई, कोई इसका टेस्ट नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर या पास्ट नॉलेज के बेसिस के ऊपर ये कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स कैलकुलेट कंप्यूट कर सके। इसके अंदर जो डिफाइंड है सिर्फ वही ये परफॉर्म करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी। दीज आर द एप्लीकेशंस। बिजनेसेस के अंदर यूज होता है, बजट्स मेंटेन करने के लिए, प्लानिंग के लिए, बारकोड रीडर। बैंकिंग के अंदर यूज होता है, आपकी एटीएम के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, स्टेटमेंट्स जनरेट करने के लिए। इंश्योरेंस के अंदर यूज होता है, ऑनलाइन ड्यू पेमेंट्स के लिए, आपकी पॉलिसी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। एजुकेशन के अंदर नॉलेज डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज होने लग रही है ये इनके लिए। मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन परचेज, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर आप परचेजिंग करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, वो सब। हेल्थ केयर के अंदर ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी होती है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं आजकल। इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर आपके आर्किटेक्चर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके डिजाइन प्रिपेयर होते हैं, घरों के आर्किटेक्चर्स तैयार होते हैं, एनालिसिस होता है, सिमुलेशन होता है, वो सारी चीजें इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर आती हैं आपके। तो मिलिट्री के अंदर आप मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, स्मार्ट वेपन्स क्रिएट करने के लिए, आपके एयरफोर्स की जो मशीनरीज है उन सब के लिए यूज होता है। कम्युनिकेशन के अंदर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ईमेल यूज करते हो, वेबसाइट्स यूज करते हो। ठीक है जी। गवर्नमेंट के अंदर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, बजट प्रिपेयर करने के लिए, आम जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, टैक्स के अंदर, सर्टिफिकेट्स के अंदर, डिफरेंट फंड्स के अंदर क्या होते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस यूज होते हैं। यानी कि कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन ऑल ऑफ द एरियाज इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है जी। ये हो गया आपका अकाउंट्स के अंदर, ये आपका एटीएम मशीन के अंदर, ये एलआईसी की पेमेंट के लिए, ये आपके अदर स्टॉक मार्केट के अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये स्टॉक्स को मेंटेन करने, सिटी स्कैन, ये मेडिकल के अंदर, ये आपका स्टेटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए, ये आपका एयरफोर्स के अंदर, ये वेदर के अंदर। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट